Okay, now we are going to study the last chapter of algebra, class 10, that is statistics. See, we have studied about statistics in standard, little bit in 8th and 9th in detail. In 9th, we studied statistics of ungrouped data. They will give you number 1, 2, 3, 4, 5, 6. They won't give you age group from 0 to 5 and 6 to 10. So when I say number of children from age group of 0 to 5, then it becomes a group. But if I say age 5, age 2, age 3, age 4, age 5, that is ungrouped. Now we also studied mean, median and mode. This is the, I think the only 3 studied in 8 and 9, 9th standard. In 10th we are going to study mean, median and mode. How to find mean, median, mode of a given data of, this is of group data, not ungrouped. Not only that, along with this, we are going to also study histogram and the curve, that is cumulative frequency less than type, I think you don't have greater than type, you have cumulative frequency of less than type. You don't have a cumulative curve this year, maybe in 11th and 12th, if the syllabus is not changed, because I don't think it is there even in 11th and 12th. Only up to 10th standard we have got cumulative frequency of less than type. This we need to draw a histogram. So we're going to study histogram also. That is where graph we will have to draw. We will understand it better way when we actually practice it. See, statistics, like maths, is a subject of practice. Practical questions will be there. It's like we'll see in your practice sets, which are practical questions, and we will solve them, okay, using certain formulas. So let us understand. You have studied, I told you, in 9th standard, ungrouped statistical data. You learn to study mean, median and mode of a ungrouped data. But this year, we are going to study how to find mean, median and mode of a group data. So we have, just consider first mean, how to find mean. Now earlier we had x, the observations, the values, and number of observations. So it was simple summation of xi upon n, okay? But this year it is not like that. We have a group, so you will have xi values which are in a group, and since they are in a group, you will have frequencies. Okay, how many number of people are there in age group, or children are there in age group from 0 to 5? 1, 2, 3, 4, 5. So that number of frequencies will be there in different age groups. Cumulative, addition of all these frequencies is given as summation. This sigma sign, summation, means sum of, addition of. Keep this in mind, okay? Now, what is this I? These are values. I going from 1 to n number of values. From 1 is first value, second value, third value, addition of all these values. So we say summation. So we have 3 types of method of finding mean this year. One is direct method, is a very simple one. Other is assumed mean method. Now this we will study in our first practice set of statistics, that is 6.1. Assumed mean method, we will study it in probably in the first and second. We'll see that. Now what is the assumed mean? Here the data is large. Okay? Data is large, say about
100 or 200 or 500 people or even 1,000 people. Now since data is large, 1,000 people of course will go here then. But the data is large, say about 50 or 60, 70, 80, 100. And the difference between them is also huge. So what you do is, we assume a mean, that is, it will take us somewhere, for example, we have, let's consider, I am considering students or children in a society, say in our colony, or in an area of about 5 kilometers around us. And the age group I have decided is from 1 year, that is from 0, little bit, maybe it can be of 3 or 4 months also, child, till age of 20 years. Or say, 20 years, we can say. So what we can, and a group which we have selected is of 0 to 4. Then we have 0 to 4. Let me explain you this. 0 to 4. Then I have 4 to 8. Then 8 to 12. 12 to 16. 16 to 20. And I have about, when I calculate, I find many students in that. So you will find that when you have such a huge frequency data, you have to assume, say you take, you see which has a maximum frequency. So if you come, means what is the central tendency? Mean, median and mode are central tendencies. That means the given data, when you try to find out a little, if you want to find information about it, then you get it is tendency of concentrating more on the mean, median and in a center part of the data, which has more frequencies, more number of people. So it is more around those people. For example, if we have got from 0 to 5 only 2 children, 0 to 4 only 2 children, 4 to 8 there are about 50 children. From 8 to 12 there are 70 children. 8 to 12 there are 180 children or 200 children. And then again it slows down. So you come to know that the tendency, the mean, median and mode will be somewhere between that age group of 8 to 12 or maybe 12 to 16, which 8 to 12, which has highest frequency. Okay, so you get an idea of what will be the assumed mean, some idea, say it will be somewhere about between 8 to 12, so you can take 10 as an assumed mean. Okay. So A will be assumed mean, then you have to find DI, a small difference. So that the calculation, see what we are doing here is, we are going to make the calculation part easy. If you have big values, then you have to multiply those values, then it becomes very time consuming. I won't say difficult, because multiplication is not difficult, but time consuming, and we have a very limited time to appear in your SS examination. Hardly 3 to 4 minutes you get for one question, in which you have to calculate plus, minus, write statement, write final answer and finish it up. So, and of course inaccurately. And if the data is in practical purpose also, let's consider the population of Mumbai. There is going to be huge data, and calculation is also going to be very lengthy calculation. So make it easier. We reduce that big values to smaller values. That is, we time DI. DI is xi value, whichever value given to you, minus A. A is the assumed mean. Then you find bar of this DI. What is DI? D bar will be summation of frequency into DI. After calculating DIs, we have different values of DIs, upon summation of Fi. Summation means addition of all frequencies. So X bar will be A plus D bar. Now we come to step deviation
method of mean. Again, this is much bigger values of d. When you will, again you will find that when you go for this, you will get di equal to xi. You need to find di equal to xi minus a. But these di values are also going to be a little bigger. So you find the greatest common divisor, and this of di values. So small g will be the GCD of all di values. Then you find ui. Ui is another variable we take. So what will be ui? Ui will be di upon the GCD. Then you find you get the summation of fi into ui. This summation of fi into ui. Upon summation of fi, you will get u bar. And once you get that u bar value, x mean will be a plus u bar into g. Now when you do these questions, you will understand what I am saying here. At present, I am only helping you before we start a chapter to make these terms little, acquainted to you. You will recognize when this comes. So some idea of this formula and how this formula will be applying in our practical questions. Okay? So I am just giving you a small introduction. Nothing else. You have to keep this somewhere, write down this somewhere in your notebook. So when we will start practice set 1, 6.1, 6.2, and 6.3, you will understand. You have to just say when mean, and then you have to see where you have to apply some direct method, where you need to apply assume mean, indirect method of course, assume mean or step deviation method. This is direct method and these are two indirect methods. Then we are going to go for a median. Now, median is nothing but when you arrange the data in a increasing order, from small to big, increasing order, that is ascending order. The median value will give you the median that you have studied where. Understand where you have studied this in standard 9, where it was ungrouped data. But today we are going to study, in this year we are going to study grouped data. So when you go for group data, you have to first see what is n, that is summation, total values of all the, total number of all observations given to you. Then total frequency. Okay? So the middle score will be, if it is odd, n is odd, it will be n plus 1 upon 2, simple. If it is capital N is even, then you have to find mean, average of the middle score. That is, median will be, or median class here. Here I am talking about median class will be n upon 2 plus n plus 1 upon 2 divided by, whole divided by 2. Once you get this value, once you know the median, what is median score or of odd or even number, then to find a median, because with this we will get an idea. To find a median, you will need lower limit of the middle class, median class. Once you know the median class, here median class, you will know, with the help of this you will know the median class. Then once you know median class, L will be lower limit of the median class. N will be sum of the frequencies. I have already done it, summation of Fi. CF stands for cumulative frequency. What? Cumulative means addition, sum of. Cumulative frequency, you have to add frequency from up. Like first frequency is 5, next frequency is 7. So it will be 5, first is 5, CF will be first 5, next 5 plus 7. It will be 12. Next, so keep on adding, accumulate it, add it. Frequency of the median class, and H is a class interval of the median class. Once you know that, substitute here and you'll get the median. So we got a small introduction here about what you're going to do, how to find mean, direct, indirect method and median. We will study, when we'll take a practice question, it will go better in your brain. Let us start now.
So now we are going to study or start practice set 6.1. What they given us, they have given us a table, statistical table of course, where they have given us a class. The class tells you what is given in the data in a class, time in hours for which students were studying. The next information they are given us is the frequency, number of students. Okay. Now you are asked to find mean. Okay. You are asked to find mean of the time spent by the student using the given information or data. Here we are doing group frequency data. So let us start. Question. Solution 1. What I will do is, I'll draw the table. First is class. This is in hours. Okay. The first column is class time in hours. The second column is which you're going to study is it is class mark. What is class mark? We'll see later on. We'll go for next. Next is your frequency. Frequency, that is Fi. And after that we have another column. This second column and third column we are going to add. It is not given in your question. We are going to add it. Now this is class mark. We call this as Xi. To get, see what is mean? Mean is X bar. That is summation of Fi Xi upon summation of Fi. You will get summation of Fi down here by addition of this thing. But where is Xi? So for that we find Xi first and then you multiply and get here. This is Fi Xi. Summation means addition of these two columns. Okay? Now, first write the data in a column. We have 0 to 2 hours. One student studies. Now here there are 7 students studies 0 to 2 hours. Then there are students study from 2 to 4, then 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10. So maximum 10 hours a student is studying. Okay. Keep this for total. The last row is for total. You people have ruled lines, we don't, so we have to draw it. So, write down the frequency in the frequency column. It is 7, then we have 18, afterwards we have 12, then 10, then 3. Now please find summation of Fi. Summation of Fi means addition of all these frequencies. 7 plus 3, 10. 10 plus 18, 28. 28 plus 2, 30 plus 10, 40, 50. So total is 50. Here. What is Xi? See, you cannot have 0 and there are many values. No? In hour means it can be even half an hour, 21 minutes, 30 minutes, 32 minutes, 34 minutes, 35 minutes. So there are many values here between 0 and 2. Now you cannot have any random taken value and multiply it by 7 and get Fx. Not possible. So you want a fixed value. So what you do is, we are going to add the upper limit plus lower limit.
2 plus 0 is 2, divided by 2, that will be 1. So that will be your class mark. Okay, this is your class mark. 4 plus 2, 6. 6 divided by 2, 3. 6 plus 4, 10. 10 divided by 2, 5. So easy. 8 plus 6, 14. 14 divided by 2, 7. See, they are even numbers. Sorry, they are odd numbers, odd numbers. So this will be 9. Now multiply this. 7 ones are 7. 18 threes are 54. 12 fives are 60. 10 sevens are 70. 9 threes are 27. Once you get these values, now please add them. Add these values. 54 plus 7, 61. 61 plus 60, 121. 120 plus 70, 61, 121, 191. 191 plus 27, 8, 11, 2. This will be, what is this? This is summation of fi, xi. This will be 218. This is 218. Now we are going for mean. This is 218 upon 50. So what is, divide 218 by 5. We get 5 4s are 21/8. 5 3s are 15. 0. Take decimal point. No, decimal point 0 and 5 6 are 30. So this is 43.6. I have divided by 5, so 10 is left upon 10. So this will be 4.36. So the mean time spent by a student, answer. Therefore, mean time spent by student is 4.36 hours. So we complete our first question. Now we go to the question number 2. Before that we will erase this. Now what we will do is, we go to second question number 2. What is question number 2? They are given us in the following table the toll paid by drivers. The toll paid by drivers and the number of vehicles is shown. So there are toll paid by drivers in rupees, and there is a what you call number of vehicles in frequency. Now we have to solve, we have to find the mean of the data using assumed mean method. That is the indirect method, first type. There are 3 types of way in finding mean. One is the direct method, where we just now solved in question number 1. Second is indirect method. Indirect method 2, assume mean and step deviation. So we go for assumed mean. So what is assumed mean? Question number 2. So isko जरा हम लोग we'll try to divide into 2 parts. Let's try to do 2 questions on this board.
This is solution 2. What they're given us is, they are given us a class. This is toll in rupees. Toll paid in rupees. Okay. Then, as I told you, always once you have class in mean questions, you will have class mark. Mean के सब क्वेश्चन में क्लास है तो क्लास मार्क भी आएगा. So next column is class mark. This is xi. Okay. Then since this is assumed mean, ये क्या है? Assumed mean हमें solve करना है ना, using assumed mean. तो here we will have the third column. जो थर्ड कॉलम होगा वो होगा DI. DI इक्वल टू XI माइनस A. XI माइनस A. उसके बाद क्वेश्चन होगा FI. उसके बाद कॉलम आएगा FI और उसके बाद लास्ट कॉलम आएगा DI. ओके. Assume mean A क्या लेना है? We'll see later on. First write down information. Okay. तो यहां आप देखो 300 400 डेटा इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस, सो उसका टेंशन की जरूरत नहीं. 400 500 500 600 डेटा पहले से ही कंटिन्यूअस में है. 600 700 700 800 and the last column, last row, we keep as for total. अभी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं. वॉट एवर फ्रीक्वेंसी दे आर गिवन अस, दैट इज पहला है 80. 300 to 400 में 80 व्हीकल्स हैं. सो 80 व्हीकल्स हैं, 800 नहीं, 80 व्हीकल्स हैं. देन वी हैव गॉट 110 व्हीकल्स. 500 to 600 के बीच में वी हैव 120 व्हीकल्स. 600 to 700 के बीच में है वी हैव 70 vehicles, and so from 700 to 800 we have 40 vehicles. So what is the total here? इसका summation of FI क्या होगा? Summation of FI will be 80 plus 120. It will be 200. 200 plus 110, 310. 310 plus 70 will be 380, plus 40 will be 420. The total summation of FI is 420. Now हम A नहीं ले पाएंगे. You will not able to take A with assume mean unless you find xi. ये assume mean जो है A, it is one of the value of xi. जो xi की वैल्यू आएंगी उसमें से एक वैल्यू A रहेगा. ओके. तो पहले हम लोग xi फाइंड करते हैं. xi फाइंड करने का तरीका मैंने आपको पहले बोल दिया है. ये टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 हर क्लास में. 400 प्लस 300 700 डिवाइड बाय 2 क्या होगा? ये 350. अभी ऐड मत करते रहो. आगे टेक्निक, इजी टेक्निक बताता हूं. ये 350 हो गया. इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 400 माइनस 300 100 का डिफरेंस है. तो ये सब 100 का डिफरेंस आएगा. तो ये होगा 450, ये होगा 550, ये होगा 650, ये होगा 750. देखो 100 का डिफरेंस. ओके. हमेशा होना ही है, चिंता मत करो.
अब इसमें से एक वैल्यू हम लेते हैं एज ए, इसमें से एक वैल्यू हम एज्यूम्ड मीन लेंगे। तो मैं हमेशा हैबिट रखो बीच की वैल्यू लो। तो कौन सी बीच वैल्यू है? 1। ये कितने कॉलम, कितने रोज हैं? 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो थर्ड बीच में आता है, तो ये हम लेंगे एज्यूम। लेट द एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू 550। तो ये आएगा आपका xi माइनस 550। ओके, तो एज्यूम मीन मैंने ले लिया। अब हमें बाकी के वैल्यूज फाइंड करनी है। यू टू फाइंड रिमेनिंग वैल्यूज। 2 कॉलम्स की वैल्यूज बाकी रही हैं, तो चलो फाइंड करते हैं। 350 माइनस 550, 350 माइनस 550 विल बी 200, तो ये माइनस 200 होगा। दिस विल बी 450 माइनस 550 माइनस 100, 550 माइनस 550 0, 650 माइनस 550 it is positive 100, 750 माइनस 550 it is positive 200। आगे वैल्यूज अब मल्टीप्लाई करो। 8 2 जा माइनस 16,000, 3 जीरोस देखो, 1 2 3 3 जीरोस, 8 2 जा करो, 3 जीरोस डाल दो। डोंट फॉरगेट नेगेटिव साइन। यहां भी माइनस साइन डालो। 11 1 जा 11, कितने जीरोस है? 1 2 3, डालो 3। 120 into 0 will be 0 only. 7 into 1, 7 and 3 zeros. 4 2s are 8. And how many zeros? 3 zeros. Now what is your summation of DI/FI? क्या है भाई? DI/FI की वैल्यू कितनी है? ऐड करो इनको। दिस विल बी माइनस 27। इनको ऐड करोगे ना, माइनस 16 माइनस 11 माइनस 27 और ये प्लस 15। माइनस 27 प्लस 15 कितना आएगा? मतलब 27 माइनस 15 ही करना है, या 2 और ये होगा 1, 12 है, लेकिन साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर। तो ये आपका जो आंसर आएगा ये है माइनस 12,000। तो अभी हियर हमें क्या मिल रहा है? समेशन ऑफ FI इज 420, समेशन ऑफ DI/FI इज माइनस 12,000। Therefore मीन निकालो भाई, नहीं सॉरी, बिफोर दैट फाइंड D बार। DI निकाला है ना, DI/FI निकाला है ना, तो हमें D बार निकालना पड़ेगा। D बार विल बी समेशन ऑफ DI/FI अपॉन समेशन ऑफ FI। कितना ये? माइनस 12,000 अपॉन 420 समेशन। 0 0 चला गया और 6 से डिवाइड करो। 6 2 are 12, so minus 200. 6 7s are 42. So you get minus 200 upon 7. तो 200 divided by 7 करो and see what answer you get. D bar. D bar क्या आता है देखो? 2 7s are 4. Sorry. 7 2s are 14. बराबर ना? 20 minus 14 is 6. Take 0 down. This 0 नीचे लिया. Now 7 8s are 56. 4. You can't divide 4 by 7, so put decimal point 0. Now you can divide. 7 5s are 35. कितना है? 5. लो 0. अभी यहाँ कुछ लेने की जरूरत नहीं है. 7 7s are 49. Take one more 0. 7 1s are 7.
दिस कंटिन्यूस, ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा ये वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आएगी, -28.57। दिस थर्ड डिजिट इज लेस देन 5। अगर ये लेस देन 5 है तो ये डिजिट जो सेकेंड डिजिट है फ्रॉम राइट वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ओके, अगर ये मोर देन 5 है, जैसे ये 1 की जगह 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, अब फ्रॉम एनी डिजिट फ्रॉम 5 to 9 होता, तो यहां जो 7 है ना, इसमें हम +1 करते हैं। दिस वुड हैव बीन 28.58। 57 के बदले 58 होता, लेकिन क्या है ये, दिस नंबर जो थर्ड डिजिट है वो लेस देन 5 है, तो हम उसको ऐसे निकाल देंगे और कुछ चेंज नहीं करेंगे। यह आएगा आपका डी बार, डी बार इज -28.57। ओके, हमें डी बार मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें मीन फाइंड करना है। देयरफॉर मीन इक्वल टू एक्स बार इज नथिंग बट ए प्लस डी। अब ए की वैल्यू कितनी है, 550 प्लस डी कितना है, -28.57। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 550 -28.57। सॉल्व करो, 550.00। देखो ये डेसिमल पॉइंट के बाद ना, दे आर 2 डिजिट्स, सो हियर दिस इज द इंटीजर, after there is no decimal point, so decimal point डालो and put 2 zeros there, nothing मतलब 2 decimal point and 2 zeros, and this will be 28 decimal point के नीचे decimal point और उसके बाद 55 और 7 subtract करते हैं। ये नहीं हो पाएगा तो 10, because you can't subtract 7 from 0, so you borrow, so you take 10, borrow करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, या borrow 0, ये भी 0 था, you have borrowed this also, this will be again 9 because you have borrowed 1, and this will be again you have borrowed, so it will be 4। आते 10 minus 7 3 आएगा, 9 minus 5 4, 10 minus 8 1, 4 minus 2 is 2, and this is the answer। आपका आंसर क्या है, 521.43। मीन, सो that's मीन ऑफ टोल इज, आंसर लिखना है आपको। therefore मीन ऑफ टोल इज 521.43। ओके, अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इरेज करेंगे। Please make a note, we are doing 6.1. We are doing 6.1 exercise. So now we are going to go for the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो, हियर ऑल्सो हियर वी आर गोइंग टू फाइंड यूजिंग डायरेक्ट मेथड। कोई एज्यूम मेथड की जरूरत, एज्यूम में नहीं है। उन्होंने अपने को दिया है मिल्क सोल्ड, और देखो मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क 250 कस्टमर्स हैं।
the table below gives the number of customers and the milk they purchased. Find mean of the milk sold by them direct method. पहले हम लोग कॉलम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सॉल्यूशन 3. अभी हम लोग कॉलम लिखेंगे, ये बहुत आसान है. सो समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यस वही करना है अपने को. सॉरी समेशन ऑफ एक्स आई नहीं है, क्योंकि एक्स आई वी आर डूइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी, राइट. जो हमें एक्स आई क्लास मार्क निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी दी हुई है. समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई हमें क्लास मीन मिल जाएगा. तो हमें पहले क्लास फाइंड करना है, क्लास लिखना है. क्लास क्या है? क्लास इज मिल्क सोल्ड. मिल्क सोल्ड इन, ये लीटर्स में ही याद रखो, दिस इज इन लीटर्स. देन वी हैव गॉट क्लास मार्क which is xi. Then we have frequency, then we have fi. ओके, मिल्क सोल्ड क्या क्या दिया है लीटर्स में देखो. ये कंटिन्यूअस इमीडिएटली देखते हैं कंटिन्यूअस डेटा है या नहीं. कभी कभी क्या करते हैं स्मार्ट क्वेश्चंस टीचर्स होते हैं, दे कभी डेटा कंटिन्यूअस नहीं देंगे. अगर डेटा कंटिन्यूअस नहीं देंगे तो हमें डेटा कंटिन्यूअस करना होगा. तो ये क्लास मार्क के पहले सेकंड कॉलम में कंटिन्यूअस क्लास आएगा, उसके बाद क्लास मार्क आएगा. लेकिन यहाँ उन्होंने डेटा कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं. डेटा कंटिन्यूअस है कि नहीं देखो. हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, कुछ देखा दूसरा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा. ओके, चलो स्टार्ट. ये हैंगे 1 और 2, में 2 और 3, तो डेटा कंटिन्यूअस है. देखो 1 एंड 2, देखो अभी 2, देखो आ गया ना कंटिन्यूअस डेटा. 2 एंड 4, वापस 4 आएगा. ये 4 एंड 6, ये आएगा 6 एंड 8. देखो डेटा कंटिन्यूअस है. 1 1-2, तो डिफरेंस इज 1 का है. 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 6-7 है ही नहीं. तो टोटल फ्रीक्वेंसी लिखते हैं. फ्रीक्वेंसी में क्या क्या दिया है? 17 पहला, उसके बाद 2 to 3 में 1, 13 है, उसके बाद है 10, उसके बाद है 7, उसके बाद है 3, और एक कॉलम आएगा. वो कौन सा कॉलम है? FI मल्टीप्लाई FI XI. अब ये आप जानते हो कैसे करना है. कहाँ टू फाइंड क्लास मार्क? 2 + 1 3, 3 डिवाइड बाई 2 1.5. अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कहा था, इनका डिफरेंस देखो कितना है. 2 - 1, 1 का डिफरेंस. 3 - 2 1, डिफरेंस 1 है ना. तो ये भी ऊपर से नीचे 1 का डिफरेंस आएगा. ये आएगा 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 हो गया. अब ये करना है आपको. उसके पहले समेशन निकालते हैं. समेशन ऑफ FI क्या है? 17 + 13, 30, 30 + 10 40, 47 and 50. टोटल है 50. समेशन ऑफ FI इज 50. अब मल्टीप्लाई करते हैं. 17 × 15 करो. डेसिमल पॉइंट बाद में डालते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं.
15 7s are 105, 15 7s are 15 5s are 75, 15 6s are 90, 15 7s are 105. So 105, so 10 carry आएगा. 15 1s are 15, 15 plus 10 25. तो ये आता है आपका 250 और ये डेसिमल पॉइंट, सो ये होगा सिर्फ 20. देखो मैं बोला बरोबर, लेकिन लिखते समय गलती की. 15 7s are 105, तो 5 और 10, 15 1s are 15 और ये 25, तो डेसिमल पॉइंट डालेंगे तो ये होगा 25.5. चलो अभी नेक्स्ट क्या है, 25 और 2.5 और 13 मल्टीप्लाई करते हैं. 13 5s are 65, 6 carry. 13 2s are 26, 26 plus 6 32. डेसिमल पॉइंट तो यह आएगा 32.5. नेक्स्ट ये इजी है. 3.5 into 10 मीन्स डेसिमल पॉइंट शिफ्ट को राइट में, सो इट इज 35. 3.5 है ना, इंटू 10 करोगे ना तो ये डेसिमल पॉइंट सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं. इसमें भी 35. अभी 4.5 into 7, 7 5s are 35, 3 carry. 7 4s are 28, 28 plus 3 29, 30, 31. यह आएगा 31.5. मल्टीप्लाई 5.5 into 3. 3 5s are 15, 3 5s are 15 plus 1 16, तो यह आएगा 16.5. हमें वैल्यूज ये मिल गई हैं. अभी हमें ये 35 में 35.5. अभी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या होगा, 5 plus 5 10, 10 15 20 0 2. मतलब ये तो बोलने की जरूरत नहीं, डेसिमल पॉइंट चला गया. 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, 9 plus 1 10, 10 15, 15 plus 6 21, 1 2 carry. Up 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. यह आपका आता है 141. Therefore समेशन ऑफ एफ आई क्या है भाई, 50. समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज 141. सो मीन क्या होगा, मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. तो ये आता है 141 अपॉन 50. 141 अपॉन 50 है तो 141 अपॉन 145 डिवाइड बाय 5 करो और बाद में डेसिमल पॉइंट डालो. 141 डिवाइडेड बाय 5, 141 डिवाइडेड बाय 5, 5 2s are 10, 4. ये 1 नीचे लिया. 5 8s are 40. 41 minus 40 is 1. अभी आगे कुछ नहीं है तो दिस लेस देन 1 is less than 5. आगे बढ़ना है तो क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट डालो और 0 ले लो. 5 2s are 10, रिमाइंडर इज 0. ये आता है आपका मीन 28.2. therefore x बार लिखो 28.2. ये आपका आंसर है, उसको प्रॉपरली लिखो. therefore मीन ऑफ मिल्क सोल्ड. अरे देखो इसी गलती मत करो, हमने 5 किया लेकिन ये 10 भूल गए हम लोग. सो ये 2.82
तो ये 2.82 लीटर्स होगा। सब लीटर्स में है ना, 28 कहाँ लीटर, 28 तो है ही नहीं है, 2.8 लीटर्स। तो मीन ऑफ मिल्क सोल्ड इज 2.82 लीटर्स। ये आपका आंसर है। Now go to question number 4. 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखो। A frequency distribution table for production of oranges of some farm मतलब कुछ orchards में से oranges is given below. Find the mean production of oranges by the, अच्छा ये हमें mean production find करना है, mean of the production assume mean मेथड से, ओके, इनडायरेक्ट मेथड से चालू करते हैं। सॉल्यूशन मेरे से ये सॉल्यूशन 4 है। कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। एज्यूम मीन है तो हमेशा देखना है कि डेटा कंटिन्यूअस है कि नहीं। पहला देखो डेटा कंटिन्यूअस है, यस डेटा कंटिन्यूअस है। तो चालू करते हैं। पहला आएगा क्लास, फर्स्ट है क्लास। ये क्या दिया है, ये है प्रोडक्शन इन रुपीज, ये है प्रोडक्शन एंड इट इज मेजर्ड इन रुपीज। प्रोडक्शन मतलब कितना यील्ड, कितना पैसे का यील्ड हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज क्लास मार्क। मैंने आपको पहले बोला है क्लास मीन में तो मीन आएगा तो क्लास मार्क निकालना ही पड़ेगा अपने को। ये एक्सा है, हमें एज्यूम मीन लेना है, इसका मतलब डी आई आएगा। नेक्स्ट वैल्यू विल बी डी आई, ये क्या होगा एक्स आई, जो वैल्यूज है यहां आएंगी, माइनस एज्यूम मीन जो भी हम लेंगे। उसके बाद आएगा एफ आई और लास्ट में आएगा एफ आई डी आई। ओके चलो अभी कितने वैल्यूज दी हैं हमें। प्रोडक्शन है 25 to 30, तो 50 तो जाना है। 25 30 30 35 लिखिए। 25-30 30-35 डेटा कंटिन्यूअस है, डेटा इज कंटिन्यूअस। 35-40 40-50 देखो गड़बड़ तो नहीं की। 25 to 30 30 to 35 35 to 40 की गड़बड़, 40 to 45 45 to 50 और अभी आएगा आपका टोटल।
टोटल फाइंड कर, पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या दी है, पहला है 20, कितने फील्ड्स हैं 20, बाद में 25, 35 to 40 का जो क्लास है उसमें फ्रीक्वेंसी है 15, उसके बाद 10, उसके बाद 2 बार 10। समेशन ऑफ एफ आई कितना है भाई, निकालो समेशन ऑफ एफ आई। ये है 20 प्लस 25 होगा 45, 45 प्लस 15 60, 60 प्लस ये 20 80। तो समेशन ऑफ एफ आई कितना है, समेशन ऑफ एफ आई इज 80। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये एक्स आई फाइंड करना। एक्स आई टोल्ड यू वी हैव टू डू एडिशन, एडिशन ऑफ अपर क्लास प्लस अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। स्टार्ट करते हैं। 30 प्लस 25 कितना होता है भाई, 55। 55 डिवाइड बाय 2 ये होगा 27.5। ये करने के बाद अभी एडिशन डिवीजन मत कर, टाइम वेस्ट मत करो, बहुत टाइम लगेगा। ये हर एक का डिवीजन ऐड करके डिवाइड करने का टाइम लगेगा। आई हैव गिवन यू इजी मेथड। क्या मेथड है, ये पहला प्रॉपरली निकालो। पहला प्रॉपर निकालने के बाद इन दोनों में डिफरेंस निकालो। कितना है 30 माइनस 25, डिफरेंस कितना है 5 का। तो इसमें 5 5 5 ऐड करते जाओ। 27.5 प्लस 5 कितना आएगा 32.5। इसमें 5 ऐड करो ये होगा 37.5। इसमें 5 ऐड करो ये होगा 42.5। इसमें ऐड करो 5 ये होगा 47.5। फटाफट। ओके, अभी कितनी वैल्यूज है, कितने रोज हैं 1 2 3 4 5। एज्यूम मीन के लिए मैंने अब क्या बोला था, बीच में का वैल्यू लो। तो ये हो गया आपका मीडियन, सॉरी मीन क्लास। ये आपका ये क्लास है। तो ये हमारा एज्यूम मीन है, कैपिटल E। लेट the assumed mean A equal to 37. assumed mean हमारा आ गया। देखो हम लोग assumed mean क्यों ले रहे हैं, I told you assumed mean क्यों लेने का, बिकॉज ये कितनी वैल्यूज आई, देखो क्लास मार्क कितनी बड़ी वैल्यूज आई है 32.5, 27.5, बाद में ये 27.5, 32.5, 37.5। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे ख्याल से 400, 500, बाद में ये बहुत बड़ी वाली, ये शायद मेरे ख्याल से 5000, 4000 के ऊपर जाएगा। मतलब द वैल्यूज विल बी बिग। जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, दीज आर विथ बिग वैल्यूज। तो इसको हमें छोटा करना है, आसान करना है, इसलिए हमें एज्यूम मीन लेना है और कुछ नहीं। ओके, सो अभी ये क्या होगा, दिस विल बी xi माइनस 37.5। अभी आपको ही पता चला कितनी छोटी वैल्यूज हो जाती है। देखो ये 27 माइनस 37.5 करो, ये आएगा -10। 32.5 माइनस 37.5 करो, ये होगा -5। 37.5 माइनस 37.5 0। ये 42.5 माइनस 37.5, 47.5 माइनस 37.5, ये होगा आपका 10। कितनी छोटी वैल्यूज हो गई, एकदम छोटी हो गई ना। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, ये होगा -200। 25 5 माइनस 175, नहीं 25 4 100, 25 5 125, 15 0 0 50, और ये आपका
ओके, देखो अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें करना है। ये -200 है प्लस 150, -200 प्लस 150 कितना होता है? -50, -50 और -25 को ऐड करो तो होता है -70, 175। सो समेशन ऑफ FI/DI क्या होगा? -175। Therefore मीन क्या है? मीन क्या है भाई? ये हमें एज्यूम मीन से करना है, तो हमें पहले हियर लिखो, सब वैल्यूज लिख दो। हियर समेशन ऑफ FI is 80, समेशन ऑफ FI/DI is -175। तो हमें डी बार निकालना पड़ेगा पहले। समेशन ऑफ FI/DI अपॉन समेशन ऑफ FI कितना आएगा? ये -175 अपॉन 80, -175 अपॉन 80 आता है। तो अभी इसको ये क्या करेंगे हम लोग? पहले ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमने पहले 50 का क्या था, हमने 5 से क्या भूल गए 10 से करना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, तो हम भूलेंगे नहीं। हम 8 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग 10 लिख लेते हैं। तो जो भी वैल्यू आएगी -175 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ लिखेंगे, हमको मालूम होगा 10 से डिवाइड करना है। अब आते हैं 175 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 जा 16, बराबर ना? 17 - 16 1 और ये 5, 8 जाता है, 8 1 जा 8, 7। अब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डेसिमल पॉइंट लो, 0 डालो, अब डिवाइड होगा। 8 8 जा 64, 6 0 लो, 8 7 जा 56 -0 लो, 8 5 जा 40, रिमाइंडर इज 0 0। यह आया आपका माइनस, भूलो मत माइनस, ये माइनस है, भूलो मत, दिस इज माइनस साइन, डोंट फॉरगेट। सो -21.87। सो डी बार कितना आएगा? डिवाइड बाई 10 है, सो इट इज -2.187, 2.1875। राउंड अप करो भाई, लुक एट दिस नंबर 7 को, इट इज मोर देन 5, तो क्या करोगे? ये +1 कर दोगे, तो ये क्या होगा? 2.18 +1 2.19, तो ये होगा अप्रोक्सीमेटली 2.19, ये होगा 21.19। मतलब ये अब डेसिमल डिवाइड, याद रखो ये है ना, निकल जाएगा, अब हमें डिवाइड बाय 10। Therefore now we go to mean x bar इक्वल टू जो a assume mean माइनस प्लस d बार, तो ये a प्लस कितना है? -2.19। a कितना है भाई? is 37.5, तो अभी 37.5 2.19, ये 10, ये 4, 10 - 9 1 3 5 3, आंसर है 35.31 लिखो। Therefore x bar is 35.31, और ये आंसर हमें यहाँ लिखना है। आंसर क्या लिखना है? Therefore the mean production of oranges, the mean production of oranges
ऑरेंजेस। मीन प्रोडक्शन क्या है? ये प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस रुपीज में है, देखो रुपीज में है इज, तो ये भी आएगा 35.31 रुपीज, 35.31। लेकिन अभी क्या होगा, उन्होंने क्या क्वेश्चन में ढंग से देखो क्या दिया है, उन्होंने दिया है ये प्रोडक्शन इन थाउजेंड्स है, तो हमें ये आएगा, यहां लिखना पड़ेगा THOUSANE 1000। इसका मतलब ये आएगा 35.31 इंटू 1000, सो ये 35310 है, तो ये आपका आंसर आएगा 35310। भूलो मत, ये छोटी सी बात है, प्रोडक्शन में वहां लिखा हुआ है, देखो कॉलम में इन थाउजेंड्स, यहां लिखा हुआ है इन थाउजेंड्स। ये आता है आपका मीन। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पढ़ लो जरा आप लोग। क्या दिया है? द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स कलेक्टेड बाय 120 वर्कर्स इन अ कंपनी फॉर द ड्रॉट मतलब सूखा, ड्राई फेमाइन, affected people are given in the following table. Find the mean of the फंड्स बाय स्टेप डेविएशन। अब आ गया स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन जो है वो थर्ड, हमने फॉर्मूला दिया था ना स्टार्टिंग में, एकदम बिगिनिंग में, तो उसमें मीन के 3 फॉर्मूले आपको दिए थे मैंने, ऐसा 1, 2 और 3। तो थर्ड फॉर्मूला जो है ना वो स्टेप डेविएशन का है। इसका मतलब इनडायरेक्ट मेथड का सेकेंड फॉर्मूला। ओके, चलो स्टार्ट करते। इसमें हमें एज्यूम में लेना पड़ेगा, ए तो लेना ही पड़ता है इसमें, मतलब डी आई आएगा ही, मतलब एक्स आई आएगा, क्लास मार्क आएगा, डी आई आएगा, डी आई माइनस डी आई की वैल्यू करने के लिए एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा, और एक वैल्यू आएगी वो है यू आई। यू आई उसके बाद कॉलम जो आएगा यू आई विल बी डी आई अपॉन जी। ये जी क्या है भाई? जी इज जी सी डी। जी सी डी आपने अपने 6, 7, 8 में पढ़ा था, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमें देखना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इरेज कर दिया हमने। अब स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हमने क्वेश्चन भी पढ़ लिया है, अभी आते हैं क्लास। ये सॉल्यूशन है, आराम के साथ। क्या है ये? क्लास। पहले देखो क्लास कंटिन्यूअस है क्या? देखो क्लास कंटिन्यूअस है क्या? यस, क्लास कंटिन्यूअस है। क्लास उन्होंने कंटिन्यूअस दिया, 0 to 500 और 500 to 1000। क्लास इज कंटिन्यूअस। तो क्लास क्या है वो उन्होंने क्लास दिया है। ये क्लास, ये फंड्स इन रुपीज है, फंड्स रुपीज में। ओके, इसके बाद आप लोग जानते हो क्या करना है। मैंने आपको हिंट दिया है, क्लास मार्क। यह आएगा एक्स आई। उसके बाद क्या है, मैं आपको बता, ये डी आई फाइंड करना पड़ेगा। सो आएगा डी आई। डी आई क्या है भाई? ये है एक्स आई माइनस ए।
ये डी आई कर लिया। एक बार डी आई फाइंड करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यू आई। यू आई क्या है, डी आई अपॉन जी। चलो ये भी कर लिया। ये करने के बाद हमारे पास आता है एफ आई, और बाद में आएगा ये एफ आई यू आई। ओके, इतने कॉलम्स हैं। ओके, टेक्स्ट बुक में सिर्फ दो दिए हैं, एक है अपना फंड्स और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। ये आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेप डेविएशन है तो कौन से कॉलम, कौन से वैल्यूज हमें कौन से कॉलम आने हैं। क्लास मार्क को आना है, बाद में एज्यूम मीन के लिए तो दिया आता है, ये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ये दोनों तो बाद में एफ आई तो आप जानते हो लेना ही पड़ेगा, अभी यू आई एफ आई लेना पड़ेगा। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। उन्होंने दिया है जो फंड्स दिया है वो लिखना चालू करते हैं, 0 to 500। उसके बाद के अंदर सा है 500 का डिफरेंस है, क्लास कंटिन्यूअस है। 500 to 1000, वापस 1000 आएगा, 1000 to 1500, बाद में 1500 आएगा, तो इट विल बी 2000, बाद में 2500 आएगा, 2000 आएगा, 2000 to 2000। देखो 5 वैल्यूज हैं और लास्ट में है आपका टोटल। लास्ट में क्या है, टोटल। अभी हम एक साइड पे जाते हैं, या फ्रीक्वेंसी लिख लेते हो, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं पहला। फ्रीक्वेंसी है पहला जो है 35 है, पहले ये पहला फ्रीक्वेंसी आपका 35, उसके बाद 28, उसके बाद आता है 32, उसके बाद आता है 15, उसके बाद आता है 10। समेशन ऑफ एफ आई क्या होगा भाई, $35, 5 + 5 10, ये 20, 0 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये देखो ये है 2 + 1 3 और 3 3 और 3 9 + 1 10 11 12, तो ये 120 आता है। तो अब यहाँ लेते हैं अभी, नाउ वी हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। देखो मैं आपको एक साइड फाइंड करने को मैंने आपको बोला था, एक ही फाइंड करना है, उसके बाद वो डिफरेंस लेके जाना है। 0 + 500 कितना होता है, 500, उसका डिवाइड बाय 2 करो, 250। तो पहला एक्स आया 250। अभी इन दोनों का डिफरेंस देखो, 500 - 0 इज 500 के डिफरेंस है, तो ऊपर से नीचे 500 ऐड करते जाओ, तो ये 250 + 500 ये होगा 750, प्लस 500 ऐड करो तो ये 1250, बाद में 500 ऐड करो 1750, 500 ऐड करो 2250, हो गया। अब ये कितनी बड़ी वैल्यूज है, कितनी बड़ी वैल्यूज है, देखो एक साइड की वैल्यूज, तो इसको हमें छोटा करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसमें एज्यूम मीन लेते हैं। एज्यूम मीन लेने के बाद भी वो थोड़ी बड़ी रहती है, इसलिए हमें वापस यू आई लेते हैं, जीसीडी। चलो पहले लेते हैं लेट द एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू
बीच में क्या वैल्यू है ना, बीच में क्या वैल्यू, ये देखो ये 1250। तो ये क्या होगा, 250 माइनस 1250, ये होगा माइनस 1000। मैंने कहा था ना आपको कितनी बड़ी वैल्यू आती है, देखो कितनी बड़ी। अभी नेक्स्ट क्या आएगा, 750 माइनस 1250, ये होगा माइनस 500, ये होगा 0, ये होगा 500 और ये होगा 1000। ध्यान से देखो DI की वैल्यूज, DI की वैल्यूज बहुत बड़ी वैल्यूज हैं। अभी इसको हम लोग FI से मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी बड़ी वैल्यू आएंगी। 1000 डिवाइड बाय 35 विल बी 3000, 35,000। तो हमें इसको और छोटा करना है, इसलिए हमने वापस इसको स्टेप डेविएशन की और एक डेविएट करते हैं, ओके, और एक स्टेप लेते हैं ताकि उसको और भी आसान किया जाए। अब यहां हमें GCD डिसाइड करना होगा, GCD ऑफ DI वैल्यूज। ये GCD किसकी वैल्यूज हैं, DI की। GCD ऑफ DI वैल्यूज कितना है, ये G है, स्मॉल g। ये कितना है, देखो इन तीनों में 500 और 1000 है, तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो यू कैन टेक 1000 ऑल्सो, लेकिन डिसिमल पॉइंट में आएगा इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं। 500, ओके 500 में G इज 500 लेता हूं मैं। अब ये जो है 1000 माइनस 1000 को 500 से डिवाइड करो, देखो DI डिवाइड बाय G, तो ये होता है -2, ये आएगा -1, ये होगा 0, ये होगा 1 और ये होगा 2। देखो कितनी छोटी वैल्यूज हो गई है ना, छोटी वैल्यूज हो गई ना, इसलिए हमने इसको स्टेप डेविएशन मेथड किया। ओके, अभी इसको F से मल्टीप्लाई करो। 35 2 जा -70, 28 1 जा -28, 32 0 जा 0, 15 1 जा 15, 10 2 जा 20। अभी इनको ऐड करना है, सब वैल्यूज को, UIFI को। 20 प्लस 15 35, -30 माइनस 35 कितना होता है, सॉरी -70 प्लस 35 यू गेट -35, -35 और ये -28 ऐड करो। 8 प्लस 3 8 प्लस 5 13 और ये -63, तो हो गया ना -63। अब ये लिखो यहां, for summation of FI is 120, summation of FI UI is -63। अबे हमें U बार निकालना पड़ेगा। So what is U बार? U बार is ये वैल्यू summation of FI। हम कैसे D बार निकाल देते, D बार या X बार, वैसे ये निकालना है अपॉन समेशन ऑफ FI। तो -63 अपॉन 120, तो ये मैं 10 रखता हूं यहां हमेशा के लिए, हमेशा एज यूजुअल, और 12 से डिवाइड करूंगा, उसके बाद डेसिमल पॉइंट डाल दूंगा। -63 डिवाइड बाय 12, 63 डिवाइड बाय 12 करते हैं, देखो कितना आ रहा है, अपना आएगा ट्वेल्व 5 जा 63, 3 यू कैन डिवाइड बाय 12, सो डेसिमल पॉइंट ले लो, 0 ले लो। 12 2 जा 12 2 जा 24, 0 ले लो। 12 5 जा 60, तो ये आ गया आपका -5.25। इसको डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये आएगा
माइनस 0.52 माइनस 0.525। अभी आते हैं मीन की तरफ। ओके, मीन एक्स बार, मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू, हमें एज्यूम मीन लेना है। एज्यूम मीन इज ए प्लस, हम क्या करते हैं मालूम है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम मीन की तरफ क्या एज्यूम मीन निकालते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार। तो यहां ये जो हम स्टेप डेविएशन में हम लोग x इक्वल टू ए प्लस यू बार नहीं लेंगे, यू बार के साथ और वैल्यू लेनी है, एक और वेरिएबल है g, तो हमें g से मल्टीप्लाई करना है उसको। ओके, सो ये आएगा a प्लस यू बार इंटू जी। चलो स्टार्ट करें। तो ये क्या होगा, a कितना है भाई, हाँ 1250 प्लस यू बार इंटू जी, लेट्स सी क्या होगा। ये इरेज करते हैं। मल्टीप्लाई करो, 5 to 5 into 5, 5 5 are 25, 5 2 are 10, 11 12, 5 are 25 and 26। तो ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 and 3, तो ये होगा ये 1 2 and 3, सो ये होगा 2.625। ओके, इनटू, बोलना नहीं है अभी, इनटू आएगा 100, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था, 100 बाकी बचा था, तो ये आएगा 2.62.5 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हुआ 2 डिजिट्स टू द राइट। तो अभी ये क्या होगा, ये माइनस है, तो ये होगा ये 1250 माइनस 262.5, ये रुपीस में है ना, तो हम लोग 50 पैसे हैं, तो 50। चलो अभी सब्ट्रैक्ट करो, 1250 पॉइंट, ये 50 पैसे है, तो इसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, यहां तो ये इंटीजर है, तो हमें पॉइंट्स लेना पड़ेगा, 0 0, 262.50 माइनस, ये आएगा, ये 0 आएगा, लेकिन ये क्या है, ये 10 होगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 14 माइनस 6 8, और ये होगा आपका 11, ये 0, 11 माइनस 2 इज 9, तो ये आता है मीन इज 987.50 एक्स बार। ये लिखने के बाद आफ्टर राइटिंग दिस प्लीज देखो कि कुछ 1000 व्यूजन तो नहीं लिखा है ना ऊपर, यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो ये आपका मीन है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ओके, जो लिखो मीन ऑफ वीकली, क्या है, मीन ऑफ फंड ना, मेरे ख्याल से मीन ऑफ फंड, मीन ऑफ फंड्स इज मीन ऑफ फंड्स कलेक्टेड, ये कलेक्ट किया ना उन्होंने, कलेक्टेड इज रुपीज 987.50। चलो अभी हम जाते हैं, ये हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। सिक्स 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6।
The following table gives the information of frequency, distribution of weekly wages of 150 workers, 150 workers का of a company. Find the mean of weekly wages by step deviation method. मतलब जो हमने ये किया ना वही step deviation method से करना है. तो चलो लिखने चालू करते हैं. वीकली वेजेस क्लास में ये वीकली वेजेस है 1000 to 2000 और ये भी कंटिन्यूस डेटा, ये डेटा कंटिन्यूस है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो 1000 से 5000 तक. ओके. सॉल्यूशन 6. चलो पहला क्या है, क्लास है और ये वीकली वेजेस, ये रुपीज में, दिस इज इन रुपीज. अब ये आपको कोई बताएगा नहीं, यू शुड नो इन एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 2 ही कॉलम्स दिए क्वेश्चन में. ओके, एक तो वेजेस और फ्रीक्वेंसी. अभी ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए. क्लास मार्क हमेशा मीन दिया है तो क्लास के बाद क्लास मार्क आएगा. क्लास मार्क, ये क्लास मार्क क्या है, एक्स आई. क्योंकि हम स्टेप डेविएशन ले रहे हैं, क्योंकि हम स्टेप डेविएशन में जा रहे हैं, तो एज्यूम मीन के सब कॉलम आएंगे, मतलब डी आई आएगा. डी आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए. ये भी अपना कॉलम हमने कर लिया. हम स्टेप डेविएशन में करें तो डी आई की वैल्यूज भी बड़ी होंगी. अभी हमें यू आई लेना पड़ेगा. इसके बाद आएगा आपका यू आई. यू आई क्या होगा, डी आई अपॉन जी. ये यू आई की वैल्यूज छोटी होंगी, यू आई की वैल्यूज छोटी होंगी. ये आएगा आपका एफ आई. उसके बाद लास्ट में है आपका यू आई या एफ आई यू आई. अभी यहां लिखते हैं क्या क्या दिया है. क्लास दिया उन्होंने 1000 to 2000, 1000 2000. उसके बाद 2000 से 3000, 1000 का डिफरेंस है. बाद में 3000 से 4000 एंड देन 4000 से 5000 और लास्ट क्या है, टोटल. लास्ट है अपना टोटल. अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या दिया है देखते हैं. फ्रीक्वेंसी दी है 25. पहले ये करना पड़ेगा मुझे. हाँ, पहली फ्रीक्वेंसी है 25 बिटवीन 0 एंड 2000. उसके बाद आया 45, उसके बाद 50 और 30. 45, 50 और 30, ये है फ्रीक्वेंसीज. ओके, 25, 45, 50 और 30. देखो कितना आता है. 25 और 45 कितना होगा, 70. 70 प्लस 30 100. 100 प्लस 50 150. तो ये जो समेशन ऑफ एफ आई है ये होता है आपका 150. अभी इंफॉर्मेशन जो दिया है हमने लिख दिया. अभी हमें कैलकुलेट करना है. अभी नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी हेल्प फ्रॉम द क्वेश्चन. अभी जो इंफॉर्मेशन यहाँ है इसका हेल्प लेके हमें आगे के कॉलम्स फिल करने हैं.
तो चलो स्टार्ट करते हैं। xi मैंने आपको बोला है, व्हाट हाउ टू फाइंड xi, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, 200 प्लस 2000 सॉरी 2000 प्लस 1000 3000 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 1500। अब आगे कैलकुलेशन नहीं करना है, मैंने आपको बोला था कैसे करना है, शॉर्टकट मेथड। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2000 माइनस 1000 1000। सो ऊपर से नीचे तक ये 1000 ऐड करते जाओ, ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगी। सो 1500 प्लस 1000 होगा 2500, इसमें 1000 ऐड करो ये होगा 3500, इसमें 1000 ऐड करो ये होगा 4500। हो गया, फटाफट वैल्यूज आ गई। अब ए हमें फाइंड करना है, लेट दी assumed mean ए, हमें कितनी वैल्यूज दी हैं 1 2 3 4, इन 4 में से हाँ 5 दिए हो तो बीच में लेते हैं, 4 दिए तो सेकंड या थर्ड लेना पड़ेगा, तो जो छोटी वैल्यू हो दोनों में से सेकंड ले लेता हूं मैं। ओके, हम लेते हैं 2500। ओके, ये हमने एज्यूम वैल्यू, एज्यूम्ड मीन हमने ले लिया। अभी हमने कैलकुलेट करना है दिया, ताकि वैल्यू अपनी छोटी हो जाए, थोड़ी छोटी हो जाए। तो 1500 माइनस 2500 ये होगा माइनस 1000, 2500 माइनस 2500 ये होगा 0, 3500 माइनस 2500 ये होगा 1000, और 4500 माइनस 2500 होगा ये 2000। अब इसमें से हमें जी निकालना है, GCD ऑफ DI इज स्मॉल g, ये हमें 1000 लेता हूं, इजी पड़ेगा, इज 1000। ओके, अब ये 1000 को अभी ये माइनस 1000 डिवाइड बाय 1000 ये होगा -1, ये होगा 0, 1000 डिवाइड बाय 1000 इज 1, 2000 डिवाइड बाय 1000 इज 2। देखो और छोटी वैल्यू हो गई। अब ये मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू -1 इज -25, 45 इंटू 0 इज 0, 50 इंटू 1 इज 50, 30 इंटू इज 60। अभी इनको ऐड करो, समेशन ऑफ FI UI, -25 प्लस 50 मतलब 50 माइनस 25 इज 25, 25 प्लस 60 ये होगा आपका 85। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलकुलेशंस। हियर समेशन ऑफ FI कितना है 150, समेशन ऑफ FI UI कितना है 85, देयरफॉर U बार कितना होगा समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI कितना, ये 85 अपॉन 150। हाँ, यहाँ 85 पॉजिटिव आया है, गुड। और ये क्या होगा, तो मैं हमेशा की तरह 85 15 इंटू 10, तो 5 से डिवाइड बाय 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो यह आता है आपका 17 अपॉन 30, तो 17 डिवाइड बाय 3 करूंगा, मैं डिवाइड बाय 10, 17 डिवाइड बाय 3, 3 5 ज़ा 15, 17 डिवाइड बाय 3 कर रहा हूं, 3 5 ज़ा 15, 2, you can't divide 2 by 3, so put decimal point, take 0, 3 6 ज़ा 18, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है देखो, ये 6 6 6 6 रिपीट होगा इंटू 6, ये रिपीट होता है, तो ये आंसर अपना आएगा 5.666 gone upon 10, so this will be something 0.5
6, 7, ये 1000 में कुछ दिया है उन्होंने वेजेस? नहीं, कोई बात नहीं, थैंक गॉड। वो 1000 आते तो मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसलिए मैंने वो डेसिमल देख लिया। ओके, ये आता है आपका 5.67। ओके, ये हम लोग 5 इसको 2 डिजिट्स रखेंगे, 2 डिजिट तक। तो 2 डिजिट क्या होगा, ये क्या है, मोर देन 5, तो इसमें +1 कर दो, तो ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 0.57। अब आते हैं x बार की तरफ। मीन x बार इक्वल टू a प्लस u बार इंटू g। क्या लिखते हैं, therefore x बार इक्वल टू a कितना है 2500 प्लस u bar is 0.57 into g is 1000. So this is 2500 plus 570, 3 डेसिमल 0.57 ना, तो ये 1 डेसिमल, दूसरा कुछ नहीं है तो तीसरा, तो मैंने 0 डाला और शिफ्ट कर दिया 57। तो ये आएगा आपका, ऐड करो तो ये आएगा 3070, ये आपका x बार है। सो मीन वेजेस, मीन वीकली वेजेस आएगा, देयरफॉर आंसर है, इसका आंसर है देयरफॉर मीन वीकली वेजेस ऑफ वर्कर्स is rupees 3070. With this, we complete exercise 6.2.